Hello students, welcome back. In this particular segment, we are going to begin with another chapter which is Animal Kingdom. So अब हम Animal Kingdom की detail में बात करने वाले हैं. Animal Kingdom is a kingdom that Whitaker had described. ठीक है, उनके 5 kingdom classification में as you have already seen Monera, Protista, Fungi, इसकी हम already बात कर चुके हैं. Plant Kingdom and Animal Kingdom detail में पढ़ा जा रहा है. So we are going to begin with Animal Kingdom. Now animal kingdom is further subdivided into phylums. तो पहले उसकी बात कर लेते हैं. So the animal kingdom is divided into phylums, right? और phylums के अंदर obviously there are classes, there are orders. हम already पूरा hierarchy पढ़ चुके हैं. But main जो phylums हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं. So the first which we are going to study is Porifera. Second phylum Coelenterata. Third is Ctenophora. Then comes the worms. तो पहले आते हैं flat worms, platyhelminths. Then we have the Ascalminths, roundworms. Then comes the Annelida group, segmented worms. Annelida के बाद include होता है Arthropoda, which is actually the biggest phylum. Arthropoda also includes the Insecta, मतलब सारे insects को arthropod include करता है और arthropod में insect ही बहुत बड़ा एक group बनाता है, right? Arthropoda के बाद आता है Mollusca. Mollusca is followed by Echinoderms और Echinodermata. And last में दो phylums आते हैं Hemichordata and the most advanced one which is Chordata. So it is through this division कि animal kingdom के जितने भी organisms हैं उनको characteristics के हिसाब से हमने इन phylums में place कर दिया है. अब today we are going to be talking about the basis of classification. कौन कौन से ऐसे characteristics हैं जिसकी वजह से एक organism को किसी एक phylum में place करा गया है. So let us first talk about the few characteristics that we are going to assemble here today, and then we will be dealing with each of these characteristics in detail. So basis of classification की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला basis है body organization. Right? Then since body organization की बात करेंगे, हम specialized structures की भी बात करेंगे या organ systems की भी बात करेंगे, जैसे कि we will be talking about digestive system as well as the circulatory system. Subsequently हम बात करेंगे about symmetry. राइट? इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपमेंट होती है उसको भी हम यहाँ इंक्लूड करते हैं एज फीचर्स जो कि हमें ऑर्गेनिज्म को किसी फाइलम में प्लेस करने में हेल्प करेंगे. सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड द जर्म लेयर्स एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ सीलोम एज टू ऑफ द फीचर्स जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के डेवलपमेंट में हमें दिखाई देते हैं. Then we will be talking about segmentation as well as cephalization, right? And lastly, we will be talking about the notochord, which again actually forms a very important feature of chordates. तो जितने भी phylum हमने chordates के पहले देखे थे, here Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminths, Ascalminths, Annelid, Arthropod, Mollusk, Echinoderms and Hemichordate, ये actually non-chordates में include होते हैं, right? So we will be all talking about these characteristics. So let us begin with the first, which is body organization.
तो जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं कि हमें पता है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर या बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरैक्ट करके ऑर्गेनल्स बनाते हैं, ऑर्गेनल्स इंटरैक्ट करके सेल्स बनाते हैं। सो बेसिकली सेल्स तो एज सच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते ही हैं सारे ऑर्गेनिजम्स के। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है और वो सारे बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। नाउ टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनिमल्स में देखा गया है। देखो एनिमल्स में हर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने प्रोटोजोआ यानी कि जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे लेकिन यूनिसेल्युलर थे उनके बारे में प्रोटिस्टा ग्रुप में हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सेल्स का उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जान लो कि 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम देखेंगे, सेल्यूलर, टिश्यू लेवल एंड organ level, right? We can also add one more, organ system. Now as the name also suggests, अगर ये explain करूं, सेल्यूलर में देखो क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, राइट। लेकिन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर तो है लेकिन सेल्स आर लूजली पैक्ड टुगेदर, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हैं, कोई स्पेशलाइज फंक्शन ग्रुप टुगेदर करके नहीं कर रहे हैं। ऐसा टाइप का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल फाइलम में देखा गया है, यानी कि पोरिफेरा में देखा गया है, स्पॉन्जेस वगैरह में ऐसा टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, देखो इनकी जो पूरी बॉडी है इसमें जो सेल्स हैं वो बस लूजली पैक्ड हैं, ये जो है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तुमको, दीज आर एक्चुअली द सेल्स, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। इसी तरीके से और भी सेल्स होते हैं जो कि पैक्ड होते हैं पूरी बॉडी में एंड दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक। इसके बाद आता है टिश्यू ग्रेड। इसमें क्या होता है, सेल्स दे स्टार्ट टू क्लब टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टिश्यू, ठीक। थोड़ा एडवांसमेंट, थोड़ा स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देखा गया, ये प्रेजेंट होता है सीलेंट्रेटा में as well as in Ctenophora. So tissue grade of organization exist. इसके बाद आता है organ system level of organization. ये देखा गया है Platyhelminths, Ascalminths में, ठीक है। इसमें क्या होता है, tissues also club together and they form different organs. Obviously organs का एक specific function होगा जो वो perform करेंगे, right? So organs are formed in the 2 phylum Platy as well as Ascalminths. Ascalminths या नेमाटोड्स भी इनको बोलते हैं, नेमाथेल्मिंथस भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना नाम में। Ascalminths इज राउंड वर्म्स, नेमाटोड्स भी बोलेंगे इनको, कभी कभी आई विल रिफर टू देम एज नेमाहेल्मिंथस आल्सो, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन सिस्टम आल्सो, सो ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन्स अलग अलग जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम पूरा बना लेते हैं, सच एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, the digestive system, the circulatory system, right? And in that case the organ system comes into function. तो annelida, upwards annelida, arthropoda, इन सभी में organ system देखा गया है। तो यहां से लेके chordata तक हमें organ system level of organization देखने को मिलता है, right? I hope this is clear, easy था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल नहीं है, right? Then we come to the digestive system. Now since we have talked about how organs they become specialized, ठीक है, और एक से ज़्यादा organs एक टाइम पे एक साथ आते हैं, they start to perform a specific function और उस तरीके से वो पूरा organ system develop करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 ऑर्गन सिस्टम्स की भी बात करेंगे, सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर सबसे पहले बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का हो सकता है, इट कैन आइदर बी इनकम्प्लीट और इट कैन बी कंप्लीट, ओके।
क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, इनकम्प्लीट एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, ये इनकम्प्लीट ट्यूब है, ठीक है, सिर्फ पूरा ट्यूब है, पूरा जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि पूरी एलिमेंट्री कनाल होती है, ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल तो है, पूरा गट है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ओपनिंग है, दो ओपनिंग नहीं है, ठीक है। क्या है? एक ओपनिंग हियर एज यू कैन सी, जिसमें से फूड अंदर भी जा रहा है और वेस्ट मटेरियल बाहर भी उसी ओपनिंग से आ रहा है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर ओपनिंग फंक्शंस एज बोथ द एनस एज वेल एज द माउथ. In this case it is known as an incomplete digestive system. देखो, पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है, देयर आर सेल्स विच आर प्रेजेंट जो कि डाइजेशन का काम करेंगे, ठीक है, एज यू कैन सी ऑल्सो, क्योंकि सेल्स हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हैं, तो कोई सिस्टम एज सच प्रेजेंट नहीं है. सीलन चेटा से अगर देखना स्टार्ट करें तो सीलन चेटा में और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, टीनोफोरा में इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, राइट. सो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इनकम्प्लीट इज फाउंड इन सीलन चेटा एंड प्लैटी. ठीक है, तो दो जो एकदम छोटे या बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ फाइलम्स हैं, उनमें ये प्रेजेंट है. देन कंप्लीट टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है कंप्लीट है यानी कि दो ओपनिंग्स होंगी, ठीक है, देयर विल बी टू ओपनिंग्स, एक माउथ की तरह फंक्शन करेगी और दूसरी एनस की तरह फंक्शन करेगी. So that is why it is known as a complete system. तो complete system किस में present होगा? प्लैटीहेल्मिन्थ्स के ऊपर जितने भी पाए जाएंगे. So it is present Ascalminthes onwards. Right? Ascalminthes और उसके आगे जितने भी फाइलम्स. I hope this is clear. इसी की तरह circulatory system. Circulatory system में अगर देखा जाए तो वो भी दो टाइप का हो सकता है. It can either be a closed one or it can be an open one. अब सबसे पहले तो ये जान लो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट कहाँ कहाँ होता है. इट इज एब्सेंट इन पॉरीफेरा, इट इज एब्सेंट इन सीलेंचेटा, इट इज एब्सेंट इन टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्कल्मिथीज. तो यहां तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. यहाँ पे लिख लेते हैं, एब्सेंट फ्रॉम पॉरीफेरा टू नेमाटोड्स. ठीक है, इतना क्लियर है, राइट. इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंशिएशन. तो आप देखो, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये क्लोज्ड हो सकता है या ओपन हो सकता है. क्लोज्ड एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट द ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स, जैसे कि वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, आर्टरीज हो गई, राइट. तो ब्लड जो है इन क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करता है और तब वो इन्हीं क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है. जबकि ओपन टाइप में क्या होता है, ऐसी कोई भी टाइप की वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है. द ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस, और इन ओपन स्पेसेस को बोलते हैं साइनसेस. तो अब जाहिर सी बात है, जब ब्लड ओपन स्पेस में पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होगा तो जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली ब्लड में बेथ करेंगे, और जो भी उनको न्यूट्रिशन, जो भी उनको ऑक्सीजन डिफ्यूजन करना होगा ब्लड के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो फाउंड. अब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, ये पाया जाता है एनालिडा में. देखो, नेमाटोड तक तो प्रेजेंट ही नहीं था, एनालिडा में क्लोज टाइप है, लेकिन इसके बाद जो दो ग्रुप्स हैं, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, उनमें क्या है, ओपन टाइप है. राइट. आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में और भी ऐसे फीचर्स तुमको समझ में आएंगे, दिखाई देंगे, जो थोड़े यूनिक होते हैं. सो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम, जबकि इसके बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे उनमें अगेन सब ओपन टाइप होंगे, जैसे कि Echinoderms, Hemichordata, as well as chordates. Right? I hope this is clear to you. Moving on to the next feature. I hope this is clear to you. तो आ जाओ रीड कर लेते हैं as to what is given.
When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over 1 million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. So classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. अब basis क्या होना चाहिए? Obviously differences होते हैं structure and form में different animals के. There are certain fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory या reproductive systems. ये सब हम basically ध्यान रखते हैं जब हम divide करते हैं. These features are used as basis for animal classification. अब सबसे पहला basis है levels of organization, तो उसको देख लेते हैं. Though all members of Animalia are multicellular, important, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. जैसे कि स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो पहला हो गया. देन सम डिविजन ऑफ लेबर और एक्टिविटी अकर अमंग सेल्स. In coelentrates, arrangement of cells is more complex. Here the cells perform same function. They are arranged into tissues and hence this is called tissue level of organization. So this becomes the second level. ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्जेस का फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल. अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल is exhibited by platyhelminths and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. Right? So this is the third. इसके बाद देखो एनिमल्स जैसे कि एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इनमें क्या होता है, echinoderms, chordates, organs have associated to form functional system. ठीक है, and each of this system is considered to be associated with a specific physiological function. ये पैटर्न कहलाता है organ system level. ठीक है, तो ये चौथा हो गया. Organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. ये हमने दो examples भी ले लिए. For example, digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside, which serves as both mouth and anus. ठीक है, इसको बोलते हैं incomplete. So this is important. A complete digestive system has two openings, mouth and anus. Similarly, circulatory system can be of two types. कैसा? Open type, जहाँ पर blood is pumped out of heart and cells and tissues and directly bathe in it. ठीक है? So cells and tissues directly bathe करते हैं और blood flows in sinuses or spaces. ठीक है? Closed type, जहाँ पर blood is circulated through series of vessels of varying diameters, जैसे कि arteries हो गए, veins हो गए, capillaries हो गए. Now see, जितने भी characteristics अभी हम पढ़ रहे हैं और phylums को उनके हिसाब से grouping कर रहे हैं, वो ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब हम फाइलम की स्टडी करेंगे तो हम यूनिक फीचर्स देखेंगे फाइलम के. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम फिर से रिवाइज नहीं करेंगे वहां पे. ठीक है, सो डू मेक अ नोट ऑफ व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग राइट नाउ. ओके, देन आ जाते हैं बॉडी सिमेट्री पे. बॉडी सिमेट्री का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब बॉडी सिमेट्री के हिसाब से भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है. सो सबसे पहले अगर देखें कि कितने टाइप की हो सकती है बॉडी सिमेट्री, दे कैन बी एसिमेट्रिकल एंड देन दे कैन बी सिमेट्रिकल. राइट? सिमेट्रिकल के अंदर तीन टाइप्स हो सकते हैं. फर्स्ट, दे कैन बी रेडियल सिमेट्रिकल. ठीक है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है. दे कैन बी स्फेरिकल इन देयर सिमेट्री, या फिर दे कैन बी बायलैटरल इन देयर सिमेट्री. ठीक, अब देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे या फाइलम्स के बेसिस पे कैसी सिमेट्री पाई जाती है. सो सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. एसिमेट्रिकल यानी कि किसी भी प्लेन से हम इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, ये दो इक्वल हाफ्स में कैसे भी हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे. ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इन द फर्स्ट ग्रुप विच इज पोरिफेरा. स्पॉन्जेस जो होते हैं उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर एकदम एसिमेट्रिकल होता है, कहीं से भी सिमेट्री हमें नहीं मिल रही होती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर एसिमेट्रिकल. सो एसिमेट्रिकल के केस में द एग्जांपल इज पोरिफेरा ग्रुप. ठीक है, फिर आ जाता है सिमेट्रिकल पे. सिमेट्रिकल के केस में अगर हम देखें रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि रेडियाई में, मतलब अच्छे खासे प्लेन्स, अलग अलग टाइप के प्लेन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर देखा जाए
तो हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली ऐसी टाइप की रेडियल सिमेट्री कहाँ पे दिखेगी, जो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें दिखाई दी जाएगी, सच एज दिस बिलोंग्स टू सीलेंट्रेटा। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है, राइट। सो रेडियल सिमेट्री हियर ये दिखाया गया है, रेडियल सिमेट्री अगेन, जेलीफिश इज अगेन अ पार्ट ऑफ सीलेंट्रेटा, तो उसमें ये दिखाई देता है। देन टीनोफोरा में बाय रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि ये दो वर्टिकल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका फ्लैजिला आ जाता है, ठीक है, रादर इसके टेंटिकल्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है। तो हम इसको कहीं से भी नहीं डिवाइड कर सकते हैं, दो प्लेन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स बाय रेडियल सिमेट्री, इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेंबर्स इकाइनोडर्म्स के होते हैं वो भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। सो इकाइनोडर्म्स में द क्लासिक एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल इज स्टारफिश, ठीक है। तो उसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं रेडियली अगर हम देखें, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर रेडियल सिमेट्री। तो अगर रेडियल की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ पाई जा रही है, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में एंड इकाइनोडर्म्स, राइट। अब आते हैं बाकी सारे फाइलम्स पे, जितने भी फाइलम बचे हुए हैं उन सभी में हम क्या देखते हैं, बायलैटरल सिमेट्री देखते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का माने क्या है, एक प्लेन से हम इसको दो लैटरल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमंस की बॉडी अगर देखी जाए तो हम अगर बीच में से एक प्लेन से डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जिसमें हमको टू हाफ्स में इक्वली डिवाइड किया जा सके, राइट। ऐसे ही केस सारे के सारे और भी ऑर्गेनिजम्स में है, जो भी हायर ग्रुप्स के या रादर हायर फाइलम्स के हैं, जैसे एनालिडा से लेके आगे तक। सर्टेन मोलस्क में जैसे स्नेल है, वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो, उसकी शेल की वजह से इट इज ऑल्सो एसिमेट्रिकल, ठीक है। सो देयर कैन बी एक्सेप्शंस ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म इन सर्टेन ग्रुप्स, लेकिन एज सच जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होंगे वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो देन कम्स बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री किसमें किसमें देखी जाती है, एनालिडा ऑनवर्ड्स, राइट। सो एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, एक फ्लैट वर्म यानी कि प्लैटी हेलमिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम टू हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू लैटरल हाफ्स में बाय वन प्लेन, ठीक है। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रेटा जहां पर हम रेडियल सिमेट्री देखते हैं। नाउ स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री में स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनली नहीं, एज सच हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कहीं से भी डिवाइड करें कोई भी प्लेन में, एज सच ये डिवाइड हो जाता है, राइट। सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो स्फेरिकल सिमेट्री भी दिखाते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम सिमेट्री हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स जो हम यूटिलाइज करते हैं और अक्सर हमें पता नहीं होती है कि इनका मतलब क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। सच एज एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर हमेशा हेड वाले साइड का रीजन होगा, ठीक है। जनरली जो बायलैटरल सिमेट्री, जो ऑर्गेनिजम्स जो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, उनका जो हेड रीजन होता है उसको हम एंटीरियर रीजन बोलते हैं और पीछे का पोस्टीरियर, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। देन डोर्सल एंड वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड नीचे का साइड होता है जो सबस्ट्रेटम से जाकर जुड़ता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन सी, अगर हम चार पैर पे जाएंगे तो हमारा नीचे ये अंदर का साइड नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़ेगा, तो दिस हियर इज आवर वेंट्रल साइड एंड द बैक साइड इज डोर्सल साइड, ठीक है। सो डोर्सल एंड वेंट्रल, इससे भी याद रखना डोर्सल के साइड हमारी बैकबोन होती है, ठीक है। सो यू कैन learn this from there also, ठीक है। then lateral and medial, मीडियल ऑब्वियसली मीडियम पोजीशन या मीडियन लाइन के तहत हम लोग मीडियल बोलते हैं किसी भी चीज को। लैटरल ऑब्वियसली जो लैटरली लेफ्ट एंड राइट साइड को बिलोंग करता है उसको हम लोग लैटरल बोलते हैं, जैसे हमारे एपेंडेजेस लैटरल है, जबकि हमारा जो ऑर्गन्स है लाइक फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट वो मीडियल पोजीशन पे आता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज फ्यू टर्म्स जब हम सिमेट्री की बात करते हैं, राइट। आई होप बॉडी सिमेट्री इज क्लियर टू यू। आउट रीड करते हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री आल्सो। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं,
ठीक है, that is in any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called as radial symmetry. ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम लोग पूरा लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, वर्टिकली नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स, ये तीन हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। Then there are animals like annelids, arthropods, where body can be divided into two identical left and right halves या lateral halves in only one plane. They exhibit bilateral symmetry. So यहाँ पर तीन टाइप की सिमेट्री दी हुई है that you are to revise. ठीक है? Moving on to the next category of features, germ layers as well as coelom. तो देखो, हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली जर्म लेयर्स से डेवलप होते हैं। अगर हम देखें एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, कितने लेयर्स में सेल्स डिफरेंशिएटेड हैं, उसके हिसाब से भी हम दो टाइप के ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सी डिप्लोब्लास्टिक एज द नेम आल्सो सजेस्ट, इसमें दो जर्म लेयर्स होंगी। सो देयर इज डिप्लोब्लास्टिक and there is triploblastic. ठीक, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो तीन लेयर्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है। एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, ये जो बीच में बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैविटी है, गट कैविटी है, ठीक है, इसको जो लाइन करती है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। एंड बेसिकली अंदर से याद रखना, जहां पर भी एन ई एन ये वर्ड जुड़ा होगा वहां पे हम अंदर की बात कर रहे होंगे, जबकि एक्टोडर्म ईसी से याद रखना या ई एक्स बेसिकली बाहर के साइड को डिनोट करता है। सो एक्टोडर्म इज द लेयर विच इज फॉर्म्ड ऑन दी आउटसाइड, सबसे बाहर के साइड। तो एक्टोडर्म बेसिकली क्या है, बॉडी वॉल की लेयर है, ठीक है। एंड देन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है मीजोडर्म, ठीक है, तीसरी लेयर। अगर मीजोडर्म डिफरेंशिएटेड है इनटू इट्स सेल्यूलर कंपोनेंट्स, तब तो उसको हम एक प्रॉपर लेयर मानते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा, एंडोडर्म होगा और एक्टोडर्म बाहर होगा, ठीक, और बीच में यहाँ पर मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगा। Such organisms are called triploblastic. Triploblastic में platyhelminths onwards सारे organisms include होते हैं, right? जबकि अगर हम बात करें about Coelenterata and Porifera तो वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं विद द सेल्स, सो देयर विल बी एंडोडर्म, there will be ectoderm, लेकिन बीच में सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। सेल्यूलर मीजोडर्म इज नॉट प्रेजेंट, इन फैक्ट अ नॉन सेल्यूलर नॉन जिलेटिनस लेयर इज प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं मीसोग्लोआ। मीसोग्लोआ इज नॉट लाइक द मीजोडर्म, तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें दो बेसिकली जर्म लेयर्स होती हैं जो सेल्यूलर होती हैं, राइट। इस केस में हम यहाँ पर दो फाइलम्स इंक्लूड करते हैं, पोरिफेरा एंड सीलेंट्रेटा। ऑब्वियसली टीनोफोरा इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द जर्म लेयर्स। यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोब्लास्टिक में बीच में ये वाली जो लेयर है, it is non-gelatinous mesoglow and it is not like the mesoderm जो यहाँ पर cellular layer दिखाई गई, right? Moving on to the next category of coelom. अब देखो, यही बीच में जो mesoderm होता है, कुछ organisms में यहाँ पर body cavity develop होती है। Now don't get confused between the gut and the body cavity. Gut एक अलग चीज है, this here is the gut या digestive system की cavity, this here is the digestive system cavity.
ये डिफरेंट होती है फ्रॉम द सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी एक्चुअली मेसोडर्म के बीच में डेवलप होती है एंड इट डेवलप सो दैट बाकी के सारे वाइटल ऑर्गन्स इसी के अंदर डेवलप हों, ठीक है। सो इट बेसिकली सराउंड्स ऑल ऑफ योर वाइटल ऑर्गन्स, इट बिकम्स अ पेरिफेरल लेयर, पेरिफेरल कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें सीलोम डेवलप ही नहीं होगी, right? In that case they are known as acoelomate organisms, right? acoelomate, as you can see, a mesoderm तो है, बीच में लेयर तो है, but mesoderm has not given rise to any coelom या body cavity. acoelomate का एग्जाम्पल है platyhelminths, right? So these are acoelomate. इसके अलावा भी ऑब्वियसली इसके पहले के पोरिफेरा सीलेंट्रेटा विल आल्सो बी acoelomate, ठीक, सीलोम नहीं प्रेजेंट होगी। इसके अलावा देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर ऑफ एस्कलमिंथीज एंड दैट इज स्यूडोसीलोम। स्यूडो जहां पर भी वर्ड होगा ये समझ लेना इट इज रिलेटिंग टू फॉल्स, जो सही से डेवलप नहीं हुआ है। सो स्यूडोसीलोम, यहाँ पे यू कैन सी such organisms are also called pseudocoelomate organisms. और इसका एग्जाम्पल है एस्कलमिंथीज या नेमाटोड्स, और ये एक ही ग्रुप है जिसके अंदर स्यूडोसीलोम डेवलप होता है। अब स्यूडोसीलोम हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सीलोम, ठीक, ये ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो सीलोम डेवलप हुआ है, सो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको बोलेंगे सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। सीलोमेट में कौन कौन से आएंगे, ऑब्वियसली नेमाटोड से आगे के, सो एनालिडा ऑनवर्ड्स, राइट, सारे के सारे सीलोमेट होंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्यूडोसीलोम एंड सीलोम? देखो सीलोम अगर ट्रू सीलोम है इसका मतलब ये है कि वो अपने दोनों साइड से मेसोडर्म से लाइंड होगी, सो इट इज लाइंड ऑन द गट साइड आल्सो बाय अ मेसोडर्म लेयर, ठीक है, और उधर बॉडी वॉल के साइड भी वो मेसोडर्म से लाइंड है एंड दिस बिकम्स अ ट्रू सीलोम, ठीक है। लेकिन जब हम स्यूडोसीलोम की बात करते हैं तो कैविटी तो बनी है, मेसोडर्म का थोड़ा थोड़ा पैचेस रह गए हैं इधर उधर और वो पूरी तरह से सीलोम को लाइन नहीं कर रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है सीलोम का इट इज नॉट लाइंड ऑन आइदर साइड बाय द मेसोडर्म, ठीक है। सो यहाँ पर स्यूडोसीलोम के केस में मेसोडर्मल पैचेस आर प्रेजेंट, मेसोडर्म डिफरेंशिएट करके बॉडी कैविटी तो बनाया लेकिन खुद सिर्फ पैचेस में प्रेजेंट रहा, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ कैविटी इज नोन एज स्यूडोसीलोम, क्योंकि यहाँ पर सीलोम इज नॉट लाइंड ऑन ऑल द साइड्स बाय द मेसोडर्म, ठीक है। आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू, दिस फीचर इज क्लियर टू यू। आ जाओ रीड कर लेते हैं अबाउट बोथ ऑफ दीज। सो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, external ectoderm, internal endoderm, are called diploblastic, जैसे कि coelentrates हो गए। Undifferentiated mesogloa layer is present between ectoderm and endoderm, like I told you, ठीक है। इसके बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें थर्ड जर्मिनल लेयर mesoderm develops in between ectoderm and endoderm, and that is why they are called triploblastic animals. So these animals are included from platyhelminths to chordates. यहाँ पे I hope image is also clear. Then coelom की बात करते हैं। Presence or absence of cavity between the body wall and gut wall is very important in classification. इसको classification में काफी use किया जाता है। Now the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom, ठीक है। Animals possessing coelom are coelomates, जैसे annelid, mollusk, मतलब annelid onward सारे coelomic animals हो गए, ठीक है। In some animals body cavity is not lined by mesoderm. Instead they are present as scattered pouches. So यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। Such a body cavity is called pseudocoelom and animals possessing them are called pseudocoelomates, जैसे कि ascalminths या फिर nematodes, ठीक। The animals in which body cavity is absent, they are called acoelomate. Absence of cavity. Platyhelminths is the example.
So these three figures also. I hope this is entirely clear. Moving on to the next feature, which is segmentation. Segmentation की अगर बात करें, it is basically the division of the entire body into units called segments. तो यहाँ पर क्या होगा, body anterior से posterior region segments में divided हो जाएगी. These are called segments, या फिर they are also called metameres. और इसीलिए ऐसे टाइप की सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं. राइट? जैसे कि यहाँ पर इन द केस ऑफ एनालिड, हम एनालिड को इनफैक्ट सेगमेंटेड वर्म्स भी कॉमनली बोलते हैं बिकॉज दे हैव सेगमेंट्स इन देम. ठीक है? और सेगमेंट्स ऐसे ही नहीं बने होते हैं. सेगमेंट्स के अंदर कुछ सीरियल रेपिटेशन होता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे नर्व्स का हो गया, या फिर द वेसल्स, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द गोनाड्स एक्सेट्रा आर रिपीटेड इन सम ऑफ द सेगमेंट्स. ठीक है? तो इसलिए इन सेगमेंट्स को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं. ठीक है? एंड दिस इज फाउंड इन एनालिडा. देन अनदर फीचर ऑफ इंसेक्टा इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जहां पर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. So in this case it is present in arthropoda. Right? So this type of segmentation also helps us to place the animals into different groups या phylums. ठीक है? I hope this is clear. Next is cephalization. जैसे जो animals bilateral symmetry के साथ होते हैं, वो generally आगे के साइड अपना या डायरेक्शन जो होता है उनके मूवमेंट का, वो एक साइड से होता है, एंटीरियर रीजन से होता है. ठीक है? दिस हैज एक्चुअली लेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ द एंटीरियर रीजन इनटू अ हेड, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट होता है और जो भी सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गए होते हैं. फूड कैप्चरिंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो एज सच कॉन्सेंट्रेट हो गए होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मैमल्स, इन द केस ऑफ अस. ठीक है? जहां पर भी एज सच देखोगे बायलैटरल सिमेट्री, वहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा हेड का. धीमे धीमे एडवांसमेंट होगा एंड देन डिफरेंशिएशन होगा. लेकिन एज यू कैन सी ऑल्सो इंसेक्ट्स के केस में हेड बन जाता है. ठीक है? ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऑल ऑफ दीज दे शो डिफरेंशिएशन ऑफ हेड एज वेल एज हेड हैज द ब्रेन, concentration of nerves, sense organs, mouth parts. Right? This is known as cephalization. So it results in differentiation of head on anterior end. ठीक? Head obviously along with brain. ठीक है? और ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा जो भी सेंसेशन होता है, फूड कैप्चरिंग होती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है, एंटीरियर साइड से आगे के साइड डायरेक्ट होता है. So that was about cephalization. Let's read about segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. जैसे कि earthworms, body shows this pattern called metameric segmentation and phenomena is known as metamerism. इस पे काफी बार questions आए हैं, so do revise this. Then next या last feature पे आ जाते हैं, which is notochord. Now notochord is a feature which divides chordates and non-chordates. Non-chordates में include होता है porifera से लेके echinoderms तक. ये सारे के सारे non-chordates होते हैं and they show absence of notochord. राइट? जबकि कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंस होता है नोटोकॉर्ड का. ठीक है? तो मेन फीचर जो होता है डिवीजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स वो ये है, नोटोकॉर्ड.
नोटोकॉर्ड इज एक्चुअली अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डोर्सल साइड पे ये देखो पाया जाता है, ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, इट इज रॉड लाइक, एंड दिस इन फैक्ट डेवलप्स इनटू द बैकबोन इन एनिमल्स. जब जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें, बर्ड्स वगैरह की बात करें, तो उसमें बैकबोन नोटोकॉर्ड से ही बनती है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ये मीजोडर्मल होता है इन इट्स ओरिजिन, मीजोडर्म से ही डिराइव किया जाता है, राइट. सो दिस फीचर इज अगेन प्रेजेंट इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से उनको कॉर्डेट्स में डाला जाता है. लेट्स रीड अबाउट द नोटोकॉर्ड एज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with the notochord are called chordates. Those which do not form this structure are called non-chordates. Non-chordates में porifera से लेके echinoderms तक सारे के सारे organisms included होते हैं, right? So that was about the last of these features. अब जान लेते हैं कि finally हमने क्या summarize किया है. हमने ये summarize किया है, हमने अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइलम समराइज कर दिए. सो लेट्स सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो सेल्यूलर लेवल किसमें है, पोरीफेरा में, ठीक है. इसके अलावा टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बाकी सारे में. तो बाकी सारों को देख लेते हैं. रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, यहाँ पे इकाइनोडर्म भी आना चाहिए, राइट. यहाँ पे लिख लेते हैं इकाइनोडर्म. But since all of the other features that the echinoderm shows, it is basically more advanced according to that, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर include किया. But यहाँ पर echinoderm भी आएगा radial symmetry, ठीक है. Bilateral symmetry, बाकी के सारे organisms platyhelminth से लेके chordate तक, ठीक. Now here see echinoderm पे यहाँ पे star यही indicate कर रहा है, ठीक है. So do remember about echinoderms. Now रेडियल सिमेट्री में भी यहाँ पर देखो सिमेट्री यहाँ पर मोस्टली एसिमेट्रिकल था. बॉडी कैविटी अगर देखें दे वर एसीलोमेट्स, वो सबसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ फाइलम इन द एनिमल ग्रुप, ठीक. यहाँ पर भी देखो रेडियल था और एसीलोमेट थे ये दोनों, ठीक. अब आ जाओ यहाँ पर देखो एसीलोमेट सिर्फ एक है, प्लैटीहेल्मिन्थ. स्यूडोसीलोम के साथ एक है एस्कलमेंथीज. And then there are the most advanced of these organisms with true coelom or coelomatic organisms, जिनमें आता है Annelida, Arthropoda, mollusk, echinoderm, hemichordate and chordate, right? So these were the basic features that now we have already discussed. So अब जब हम जाकर आगे organism groups की स्टडी करेंगे, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक स्टडी करेंगे, तो हम फाइनली यूनिक फीचर्स को देखेंगे. सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल जहां पर हम फाइलम्स की स्टडी करेंगे, we would have already been doing this, so do revise all of this before we move on to the general study of the phylums. Stay tuned, we'll come back in the next class. Thank you.